हा समवसरण में बिराजे वीर, त्रिशूलानंदन जय महावीर। समवसरण में बिराजे वीर, त्रिशूलानंदन जय महावीर। देश न देते श्री महावीर, त्रिशूलानंदन जय महावीर। समवसरण में बिराजे वीर, त्रिशूलानंदन श्री महावीर। देश न प्रभु की है गंभीर, त्रिशूलानंदन जय महावीर। देश न प्रभु की है गंभीर, त्रिशूलानंदन जय महावीर। करुणा के जहाँ बहते नीर, त्रिशूलानंदन श्री महावीर। समवसरण में बिराजे वीर, त्रिशूलानंदन जय महावीर। समवसरण में बिराजे वीर, त्रिशूलानंदन हे महावीर। सुवर्ण सिंहासन सुंदर, त्रिशूलानंदन जय महावीर। सुवर्ण सिंहासन सुंदर, त्रिशूलानंदन जय महावीर। देव देवी के नमते शीर, त्रिशूलानंदन हे महावीर। देव देवी के झुकते शीर, त्रिशूलानंदन हे महावीर। समवसरण में बिराजे वीर, त्रिशूलानंदन हे महावीर। श्रीमते वीरनाथाय सनाथाय अद्भुत श्रिया, महानंद सरोराज मरालायार्हते नमः। समवसरण में बिराजे वीर, त्रिशूलानंदन जय महावीर। मंदिर को मंदिर समझे तो परम की यात्रा चौकस हो सकती है। मंदिर को घर समझते हैं तो निरोध की यात्रा भी हो सकती है। यहाँ पे पूज्य श्रमणी शिष्य उपस्थित है। ये भक्ति शुरू करने से पहले उनके मुख से मंगलाचरण सुन के बाद में परम तत्व की ओर एक यात्रा में हम आगे बढ़ेंगे। आप सबसे एक नम्र निवेदन, 2.5 घंटे हमारे पास है। अगर 2.5 घंटे में आप आपके लिए कुछ कर सके तो यहाँ पे बैठना उचित है, वरना आप लोग सब जानते हैं कहाँ पे बैठना चाहिए। पूज्य श्रमणी जी का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन अमिता जी से सुनकर श्रमणी जी को विनती करूंगा कि आपके मुख से परमात्मा ने जो बोल दिए वो बोल आप हम तक ले आए और बाद में परम की यात्रा हम शुरू कर सकें। Shamini Dr. Satya Pragya ji and Shamini Dr. Rohini Pragya ji are disciples of Acharya Shri Mahashraman. They are both faculty members at Jain Vishwa Bharati University in Lucknow, India. They both hold PhDs in philosophy. They are extremely learned, extensively travelled and well published. They are great orators and have years of teaching experience. Right now, since 6 months, they've been at JVB NJ, New Jersey, Islin, and we are blessed today to have their company with us. The president of JVB NJ, she's my sister, Madhumita, and she's also here. So I welcome
welcome even you, Madhumita. Thank you for coming. Please, Mata Sabha. हमारा सबसे अनुरोध है कुछ हमें सुनाने का कृपा करें। हाँ, आप कुछ भी मत। अंतः विराजमान आराध्य देवते श्री चरणों में कोटिशः वंदना। आदरणीय निर्देशिका जी, हमारी भजन मंडली, उपस्थित धर्म परिवार, this is a great occasion for us to be here in this temple of New York, and we have been gathered here to have Bhakti Sandhya. I think the whole program has been designed in a way to enhance our devotion, the state of devotion. I'm a student of philosophy, and in that regard, I will definitely bring one of the aphorisms of Jainism. The foundational aphorism of Jainism. It defines the path of emancipation, saying, right faith, right knowledge, and right conduct constitute the path of emancipation. Acharya Kundakunda states this in Tattva Sutra. I simply pick up the first part of this trinity of right faith, knowledge, and conduct and try to discuss a few things about how does Jainism conceives of the concept of right faith. Jainism have a very strong metaphysical foundation, and in that case, it discusses the problem of reality and says that right faith implies to have a right understanding or a right perception of what is real. To simplify, to see things as they are, to perceive truth as truth, and to perceive untruth as untruth. When our perception is of this frame, yathartha grahanam, that is, to perceive things as they are, this is considered as right faith. This is the first part of right faith as discussed by Jain philosophy. Let me bring the other aspect of right faith as elaborated in Jain philosophy. The other part says, right faith is devotion, samyak shraddha, yathartha shraddha. And when it comes to the philosophical traditions, there are a group of philosophers who have discussed or who have suggested the path of emancipation and says that one can reach the path of emancipation through right knowledge. If you have right knowledge, you can achieve emancipation.
There are other groups of philosophers who says, if you have right conduct, you can achieve the path of emancipation. Well, there is also a group of philosophers who says, neither knowledge nor conduct, devotion, that's enough. If you have right devotion, you can reach the path of emancipation. And when I looked at the Jain principles of emancipation as a path of emancipation, I feel that there is an inherent combination of all these three elements of knowledge, faith, and conduct. As we were in the third floor, and we were coming to this floor, and I saw Jain anatomy, a picture in the staircase. And I found that we have a kind of devotion. When we are in a state of devotion, our anatomy comes in a kind of configuration. It comes in such a state that it naturally generates kind of hormones. It naturally produces the hormones of happiness. It naturally produces the hormones of bliss. So, emancipation is not far when you are in a state of devotion. You achieve emancipation right at this moment. So, this is an occasion in which we are all gathering, we all are having fine moments of having the realization of what really emancipation means. And Acharya Mahashramaji, we have a tradition of having bhakti every day twice. And in that, we have a whole prayer called as Arhat Vandana. And Acharya Mahashramaji states 4 steps. He directs 4 principles to this Arhat Vandana. Pankti Bhattata Susthirata Uchcharan Ho Tanmayata Arhat Vandan ki aur pavitra ishara hai Prabhuvar Bhikshu Swami ka shashan sabal sahara hai मनोहर भव्य नजारा है चमकता चारु सितारा है प्रभुवर भिक्षु स्वामी का शासन सबल सहारा है. So this vision of devotion is in full agreement or in consistency with the path of emancipation. Let us all strive to walk on this path and reach our goal as soon as possible with this all feelings. Thank you very much. आराध्य देव के श्री चरणों में वंदना। आदरणीय स्वामी जी, उपस्थित धर्म परिवार, अध्यात्म का यह मंच, चारों ओर अलग अलग तरह के रंग, मुझे भगवती सूत्र का एक सूत्र स्मृति में हो आया, जहाँ पर भगवान ने लेस्ताहीन विशुद्ध माणेहीन यह संदेश दिया है, हम लेशाओं को पवित्र बनाएं। मुझे लगता है भक्ति का भी अपना एक रंग होता है, अध्यात्म का भी एक रंग होता है, और अलग अलग तरह की जो भावनाएं होती हैं उनका भी एक रंग होता है। ये रंग हमारे भीतर की केमिस्ट्री को प्रभावित करते हैं और हमारे भीतर वैसी ही भावनाएं संचालित होने लगती हैं। प्रश्न पूछा गया कि सप्ताह में दिन कितने होते हैं। एक बच्चे ने कहा सप्ताह में दिन 5 होते हैं। बात पूरी नहीं हुई, टीचर सामने था, क्या सप्ताह में 5 ही दिन होते हैं? उसने कहा नहीं, मेरे स्कूल के 5 डेज होते हैं, इसलिए मेरे लिए सप्ताह के दिन 5 होते हैं। पापा के लिए सप्ताह के लिए 6 दिन होते हैं, क्योंकि उनका एक दिन हॉलीडे रहता है, और मम्मी के लिए सप्ताह का अर्थ है 7 दिन, उनके लिए कोई हॉलीडे नहीं है। मुझे लगा कि जहाँ पर भक्ति की, अध्यात्म की बात हो,
वहाँ पर सप्ताह में पूरे 7 दिन होते हैं। वहाँ पर न 5 दिन की बात है न 6 दिन की बात है। बस जब जहाँ जो क्षण हमें मिल जाए, जब हमें लगे कि हमारी आंखों से जो हमें दिखाई दे रहा है उससे पार भी हमें देखना है, उसे आगे भी देखना है, तो हम आंखों को बंद करें, भीतर में झांके और भीतर के प्रभु का जब साक्षात्कार होगा तो अपने आप वो दृश्य, वो नजारा हमारे सामने आ जाएगा कि हम अकेले नहीं हैं, हमारा प्रभु निरंतर हमारे साथ है। तो मुझे लगता है आज जिस निमित्त को बना करके यह भक्ति का आयोजन किया गया है, ये वो जब जहाँ जो चाहे निमित्त मिल जाए भक्ति का तो उसका आनंद लेना चाहिए। एक संस्कृत सूत्र में कहा गया कि भगवान मुझे 3 आंखों वाला बना दो। कौन सी 3 आंखें मुझे चाहिए? ये 2 आंखें हम देखते हैं बाहर की दुनिया को, और बाहर की दुनिया को जब तक देखते हैं तो उसके साथ या तो राग जुड़ता है या द्वेष जुड़ता है। राग और द्वेष से मुक्त होने के लिए कोई ऐसी ज्ञाता दृष्टा भाव वाली आंख चाहिए। तो मुझे त्रिचक्षु बनाओ, लेकिन कैसा? श्रद्धां पुरस्कृत्य गतिं करोमि, बुद्धिं पुरस्कृत्य विचारयामि, आत्मानुभूत्या विदधामि साक्षात्, त्रिचक्षुरेवं भगवन् भवेयम्, त्रिचक्षुरेवं भगवन् भवेयम्। मैं श्रद्धा को सामने रखकर गति करूं। जो कुछ भी गति करना है, जीवन का उद्देश्य निर्धारित करना है, तो जो कुछ हमें दिखाई दे रहा है उतने से ही काम नहीं होगा, उससे आगे बढ़ना होगा। तो उसके लिए हम श्रद्धा का आलंबन लें। जहाँ पर हमें तत्व को जानना है, सच्चाई को जानना है, तो भगवान ने कहा अपना सत्य में सिद्धा, स्वयं सत्य खोजे। वहां पर हम तर्क का प्रयोग करें, बुद्धि का प्रयोग करें, बार बार उसको समझने की कोशिश करें। लेकिन श्रद्धा और बुद्धि से आगे भी है आत्मानुभूत्या विदधामि साक्षात्। जो कुछ मैंने जाना है, जो कुछ मैंने समझा है, जिस पर मैंने श्रद्धा की है, वह और मैं अलग न रहें। आत्मानुभूति, हम उसकी आत्मानुभूति में चले जाएं, स्वयं तन्मय बन जाएं। बिंदु भी हम सिंधु भी हैं, भक्त भी भगवान भी हैं। तो हम भक्ति का तात्पर्य, श्रद्धा का तात्पर्य वहां तक ले जाएं कि हम और हमारा प्रभु अलग न रहे, हम अपने भीतर उस प्रभु की प्रतिमा का साक्षात्कार कर सकें। आचार्य श्री महाप्रज्ञा जी ने प्रेक्षा ध्यान के नाम से एक जो विधा हमें प्रदान की है, हम ध्यान करें। किसका ध्यान करें? परम आत्मा का ध्यान करें। परम आत्मा के ध्यान से क्या होगा? हमारे भीतर परमात्मा अवतरित होना प्रारंभ हो जाएगा। हमारे भीतर में वीतरागता की रश्मियां प्रवाहित होने लगेगी। हमारे जो आईब्रोज के मिडल का भाग है, जिसको हम दर्शन केंद्र कहते हैं प्रेक्षा ध्यान की भाषा में, वहां पर हम वीतराग प्रभु की प्रतिमा को स्थापित करें और उस प्रतिमा की स्थापना के साथ भावना का प्रयोग करें कि मेरे भीतर में, मेरे कण कण में, मेरे रोम रोम में वीतरागता का भाव प्रवाहित हो रहा है, वीतरागता का संचार हो रहा है। तो मैं समझती हूँ जब राग होती है, अच्छा कंठ गाने के लिए होता है और एक जो स्वर लहरियां मुखरित होती है, तो ये हमारे भीतर में उस भाव का संचार करती है जो हमें अपने भीतर की यात्रा की ओर ले जाते हैं, अपने भीतर विद्यमान परमात्मा का साक्षात्कार करवाने में निमित्त बनते हैं। हर शब्द की अपनी शक्ति होती है, हर स्वर की अपनी शक्ति होती है और हर मंत्र की अपनी शक्ति होती है। तो हम भक्ति के अंतर्गत शब्द, स्वर और संगान, इन तीनों का जब प्रयोग होता है तो एक तरह से हमारे भीतर उस तरह का वाइब्रेशन, उस तरह के
प्रकंपन पैदा होते हैं कि हम जो हैं और जो होना चाहते हैं, जो हमारा परम लक्ष्य है, उस दिशा में प्रस्थित हो सकते हैं। तो मैं आज की इस सभा में यह संदेश देना चाहती हूँ कि परम प्रभु भगवान महावीर के माध्यम से जो हमें एक संदेश मिला है, उस संदेश को अलग अलग रूपों में सुनने का, समझने का और आचार्य भिक्षु की अनुशासना में जीने का जो अवसर मिला है, यह अनुशासना, यह शासन हमारे भीतर तरंगित हो और शब्दों के माध्यम से जो भाव प्रतिमा का हम निर्माण कर सके, अपने भीतर प्रभु को विराजमान कर सके। तो मैं समझती हूँ कि इस भक्ति संध्या की सार्थकता हो सकेगी। सबके प्रति शुभकामना, मंगल कामना। ओम श्रीमते वीरनाथाय सनाथाय तुतश्रिय महानंद सरोराज माराया हते कामठे धरेन्द्रेन्द्र सोचितं कर्म प्रभुस्तुल्य मनोवृत्ति पार्श्वनाथ श्रीस्तु वः जिने भक्ति जिने भक्ति दिने दिने सदा मेस्तु सदा मेस्तु सदा मेस्तु भवे भवे। कहते कि सत चित और आनंद को प्राप्त करने के लिए ईश्वर ने भक्ति मार्ग बहुत ही अच्छा बताया। और ये भक्ति मार्ग से परम तत्व के मार्ग पर जाने की एक अभिलाषा लेके हम आज यहाँ पे सब लोग एकत्रित हुए। आप लोगों ने परमात्मा को देखा, आज परमात्मा कैसे लग रहे? सच में बोलना, आगे की शायद हाँ या ना? हाँ या ना? कितने 350 500 कितने इकट्ठे हो? रूपातीत अवस्था को देखने के लिए एक परमात्मा की साधना को देखनी होती है। और जो प्रभु ने साधना की, वो साधना समर्पण में परिवर्तित हो गई। और आज अवसर है प्रभु को कुछ समर्पित करने का, यानी समर्पण करने का।
सत, चित और आनंद प्रभु को कहते हैं कि आप हमें दो, हम अपनी सेल्फ आपके चरणों में समर्पण करते हैं। और आज की भक्ति शुरू करते हैं एक सात्विक मंगलाचरण से। आप सभी को नम्र निवेदन है, 2.5 घंटे आपके मोबाइल स्विच ऑफ या साइलेंट कर देना। Hare
अरिहंता मंगलम। यशो विजय जी महाराजा और आनंददेव जी महाराजा दोनों साथ में जब मिले और दोनों जब साथ में मिले तो एक दो महापुरुष की यात्रा एक दूसरे के सामने आई। एक नए को लेके और एक तत्वज्ञान को लेके। पार्श्वनाथ परमात्मा की खूब अच्छी विनती करते हुए यशो विजय जी महाराजा कहते हैं कि हे प्रभु, मुझे आप जैसा बनने का एक अवसर प्राप्त हुआ है क्योंकि मैं भी एक शुद्ध आत्मा हूं। आप जैसा मैं भी बन सकता हूं, केवल आपने जो पाया है वो मुझे पाना है और पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। हाँ? इसलिए यशो विजय जी महाराजा ये पार्श्वनाथ परमात्मा के स्तवन में कुछ ऐसा बताते हैं। 250 वर्ष पहला ये आनंददेव जी महाराजा થઈ ગયા, यशो विजय जी महाराजा થઈ ગયા અને કેવી જૈન સંપ્રદાયને એક ઉચ્ચ કોટીની રચના આપી। એ રચનાને પ્રભુના ચરણોમાં અર્પણ કરી। और
जन जन में परमात्मा आप बसे हो। मैत्री, प्रमोद, करुणा और माध्यस्थता करते हुए प्रभु आपने जो बताया वही साधन की भक्ति, वही बार भावना में से एक भावना मैत्री। सभी जीव करो शासन रसी की भावना परमात्मा ने की और परमात्मा ने सबको तारने का एक वचन दिया, क्षमता हम में होनी चाहिए। और इसलिए कहते हैं कि हमें रास्तों की जरूरत नहीं है, हमें तेरे पैरों के निशान मिल गए हैं। प्रथम तीर्थंकर आदेश्वर परमात्मा को आज याद करें, क्योंकि 2 દિવસ પહેલા જ આપણે પટ જુહાર્યું છે, બરાબર કે નહીં? તમને આ માઇક બરાબર સંભળાય છે? ભારતીય तो क्या बोलता नहीं, हमें थोड़ा गुजराती लोग का भी ध्यान रखना पड़ता है। 2 दिन पहले पालिताना की यात्रा हुई, यहाँ पे पट शायद लगा हुआ था, आपने दर्शन किए होंगे। उसको 6 गांव की यात्रा बोलते हैं। और जब स्नातक पूजा गाते हैं तब गाते ना प्रदक्षिणा देते हुए, सोरठ देश में संचर्यो न चढ़्यो, शत्रुंजी नदी नायो नहीं। आज वही ऋषभदेव परमात्मा को याद करते हैं, क्योंकि कवि धर्मपाल ने बताया जगत में प्रथम दीक्षा भी ऋषभदेव भगवान की हुई और जगत में प्रथम भिक्षा भी ऋषभदेव भगवान को मिली श्रेयांस के हाथ से। प्रथम राजा भी वो बने, प्रथम यति भी वो बने। राज्य को परमात्मा ने सौंप दिया नमी बिनमी को, परमात्मा ने कुछ नहीं रखा। क्यों? जिनको संसार में असारता लगती है उससे संसार अच्छा नहीं लगता। और भगवती सूत्र की जो बात की सुन लीजिए। ऐसे परमात्मा आदेश्वर भगवान की भक्ति करते हुए एक समर्पण पुष्प उनके चरणों में धरे कि परमात्मा आदेश्वर कौन है, कैसे है।
प्यारा है। 2009 से मैं न्यूयॉर्क जैन सेंटर में आता हूँ और आप सब जो भी मुझे आता है वो आप मुझे बताते हो। आप सबका धन्यवाद पहले तो। यहाँ पे बहुत अच्छे गायक लोग हैं। भारती भाई को भी सुना है, नवीन भाई को भी सुना है, अमिता जी को भी सुना है, हाँ रमेश भाई, लखानी साहब, सभी लोग परमात्मा के चरणों में भक्ति सुमन अर्पण करते हैं अपनी अपनी कैपेसिटी से। आज एक भक्ति सुमन जो यहाँ पे परमात्मा को अर्पण हुआ है उसका नाम है समर्पण। और वही समर्पण क्या कहने जा रहा है अब सुनते हैं अमिता जी से।
जब तुम आए जगत में, जगत हंसे तुम रो, ऐसे करनी कर चलो तुम हंसो जग रो। बड़े दयालु तुम हो महावीर, सुना है मैंने। बड़े दयालु तुम हो महावीर, सुना है मैंने। दो हाथ कि परमात्मा महावीर का जब ये निर्माण हुआ वो दिवाली की रात, पर उस दिवाली की रात को हजारों लोग पावापुरी में परमात्मा का निर्माण कल्याण गाते हैं। शास्त्र कहता है परमात्मा जहां चलते हैं वो तीर्थ हो जाता है। त्रिषष्टि शलाका पुरुष नामक ग्रंथ में प्रभु महावीर का एक जीवन ऐसा बताया कि महावीर को तीर्थंकर से ज्यादा एक योगी पुरुष कहना उचित है। क्यों? अगर वो योगी पुरुष नहीं होते तो तीर्थंकर नहीं बनते। और यही परमात्मा महावीर की आज यहाँ पे प्रतिमा देख रहे हैं, जिन्होंने इतनी सुंदर आंगी की। एक बार उनको हाथ बढ़ाए।
भूमि एक ही ऐसा, एक ही ऐसा, एक ही ऐसा, एक ही ऐसा, उसकी छाया सब पे नहीं है, सुना है मैंने। बड़े दयालु तुम हो महावीर, सुना है मैंने। बड़े दयालु तुम हो महावीर, सुना है मैंने। त्रिशला माता वीर रतन धर पादम, महावीर रतन धर
वीर बंधन पायो पायो वीर बंधन पायो 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 नमो जिनाणं जिय भयाणं 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 वीर रतन धन पायो जीवन एक बार पायो जीवन पायो जीवन वीर रतन पायो। समवसरण में बिराजे वीर त्रिशूलानंदन जय महावीर समवसरण में बिराजे वीर त्रिशूलानंदन जय महावीर देश न देते श्री महावीर त्रिशूलानंदन जय महावीर समवसरण में बिराजे वीर त्रिशूलानंदन श्री महावीर।